Hey guys, how are you? So, I'm posting a video after a pretty long time, but this is in continuation of the chapter 2 videos that we were discussing. In just for a quick recap, in chapter 2 we had discussed in the previous two videos about what do we mean by mixtures, what are the different terms for homogeneous and heterogeneous mixtures, what do they mean. We had learned their examples, and most importantly we had learned the three main types of mixtures, that are solutions, suspensions and colloids. And not just that, we had discussed about their properties and characteristics much in detail. So now in this video today we are going to talk about the mathematical portion actually of that portion. So we are going to discuss about the some terms which involve numericals and all, and which are dealing with the concepts of solution and other mixtures. So for that, the first term that we need to understand is concentration of a solution. Now, what do we mean by concentration of a solution? In order to understand that, let me make two diagrams over here. Suppose we have a test tube, and here we have water, and apart from that we have very few crystals of, let's say, copper sulfate, just a few crystals that we have, and let us name this as A. Now suppose if I have another test tube, and in this I have water, and along with that I have let's say 1 tablespoon of copper sulfate. So I hope you can see the difference between these two cases. Let me name this as B. Here we had added only few crystals, but here we are talking about 1 tablespoon. Obviously this is much larger than this. So if I talk in relative terms, by relative terms means we are comparing A and B with each other, then we use the term concentration. How do we use that? We say that the solution that is there is much more concentrated than that in A. However, if I just have this one solution, then I cannot actually use these terms in order for comparing, because the thing is that this concentration is actually a relative term. When you are saying that one thing is concentrated, or it is less or more concentrated, that automatically means that you are comparing it with some other test tube or some other solution. So based upon the amount of solute in a solution, we can classify the concentration in three terms. One is as dilute, the other is as concentrated, and lastly as a saturated solution. Like in this example only, if I talk about, if I'm comparing these two test tube, what I notice up here is that the amount of solute, if you remember what was solute, solute is that component which is added into the solution, which is to be dissolved. And if you remember, the opposite of this was solvent. Solvent was the thing in which the other thing is dissolved. So if I here we are talking about the amount of solute. यहाँ पे हमारा solute क्या है? कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट यहाँ पे हमने 1 चम्मच भर के लिया. यहाँ पे क्या लिया? सिर्फ कुछ few crystals लिए. So obviously the amount of solute in solution in B is much greater than that in A. So I can say that B is more concentrated than A. If I talk about this term, can you define a sentence which can define this example only? Well, if you are saying that yes, A is more dilute than B, then that is also right. Because here we are comparing the two, and we have told that yes, A contains less amount of solute. And obviously, so these are just the relative terms, and how do we use these terms in the common chemistry language. Now the thing is that we have understood that how do we actually define any test tube, any solution in terms of concentration.
But concentration can also be calculated specifically in terms of mathematical formula, that is the mathematical equation. So concentration can be simply, calculated in many different ways. One such ways or two such ways we are going to discuss, the simpler one of the class 9th level. They are as number one, concentration can be divided, can be equated as the amount of solute upon the amount of solvent. That means हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में भाई हमारे पास कितना सॉल्यूट है और वो कितने सॉल्वेंट में मिलाया गया. The other way of calculating concentration is that you can also calculate it as amount of solute upon the amount of solution. यानी कि पूरा solution, हम सिर्फ solvent की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं solute plus solvent दोनों की, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही हमारा क्या बना, solution. So concentration can be calculated in either way because eventually we are talking about relative terms. हमें सिर्फ ये बताना है किसमें हमारा solute ज़्यादा है किसमें कम है. So it can be calculated in either of these two major ways. Now, if we talk about more specifically, then here are the three cases that we are going to discuss. Number first one is mass by mass percentage. Second is mass by volume, and the third one is volume by volume percentage. These are the three common ways that are used in order to find the concentration. Let us see how. Now here I have taken the first example that is there. We are now going to discuss about the first case, that is mass by mass. You can simply write it as this also, mass by mass percentage. So what is this suggesting? If you can have an idea, here we are first of all clear with one thing, that both the things, the solute and your solution, we are talking about their mass. We are not talking about their volume. That means we are going to deal with some terms which are related with the word grams, with the unit grams, right? So this is the first part, mass by mass percentage. Now let me explain it to you with an example. For example, if you have a 10% of solution of common salt. अब 10% of solution of common salt का क्या मतलब है वो समझते हैं. पहले भूल जाओ कॉमन सॉल्ट क्या चीज है, हमें पता है 10% का क्या मतलब है. 10% का मतलब है कि भाई 100 पार्ट में से हमारा 10 चीज है. अब आ जाते हैं सॉल्ट पे. हमने कहा कि 10% ऑफ कॉमन सॉल्ट है, यानी कि अगर टोटल हमारा जो सॉल्यूशन है 100 ग्राम है तो उसके अंदर 10 ग्राम हमारा कॉमन सॉल्ट है और बाकी जो टोटल हमारा सॉल्यूशन है दैट इज 100 ग्राम. पर भाई ये सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाने के लिए तो मुझे वाटर की भी जरूरत है. तो वाटर कितना प्रेजेंट है, टोटल सॉल्यूशन इज 100 ग्राम्स, सॉल्ट हमें पता लग गया 10 ग्राम है, वाटर कितना हो गया, that is simply 90 grams. That means you simply subtract it. So in other words you can also say that आपका यहाँ पे जो solvent है water वो 90 ग्राम है और जो आपका solute था salt that is 10 grams. And since we are talking about percentages, then automatically the total solution becomes 100 grams. So this is what we mean by that. Now, if we talk about the specific formula that is written up here, so that is mass of solute upon mass of solution into 100 because we are calculating the percentages. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन किसको मिला के बन रहा है, सोल्यूट को और सॉल्वेंट को मिला के बन रहा है, तो आप इन दोनों के मासेस को सिंपली ऐड कर देंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. राइट. नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड केस. नाउ सेकंड केस इज मास बाय वॉल्यूम. नाउ आई होप यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि पहली चीज किससे हम डील कर रहे हैं, मास यानी कि ग्राम से. दूसरी चीज हम डील कर रहे हैं वॉल्यूम से यानी कि मिलीलीटर.
सो यहाँ पर अगर हम थोड़ा अपना उसी केस को लेते हैं, हमारे पास एक ही अपना गरीब एग्जाम्पल हमारा चलता रहेगा, कॉमन सॉल्ट और वाटर। ये एक एग्जाम्पल आपको सालों साल खूब चलेगा। तो हम अपना वही गरीब एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड इन वाटर। अब यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 10% सॉल्यूशन है मास बाय वॉल्यूम की ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो उसका क्या मतलब होगा वो समझते हैं। 10% मास बाय वॉल्यूम से मतलब हो गया कि आउट ऑफ 100, यहाँ पे क्या आएगा ml, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम जो है हमारा सॉल्यूशन का वो 100 ml है। इसके अंदर हमारा 10 ग्राम आएगा या ml आएगा? ग्राम आएगा। ग्राम, 10 ग्राम हमारा यहाँ पर सॉल्ट है। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर हमने जब 10 ग्राम सॉल्ट मिलाया तो हमारे पास जो सॉल्यूशन रेडी आया उसे हम कहते हैं 10% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब इसको एक्चुअल क्या मतलब हो गया कि आपने 10 ग्राम आपने नमक लिया और वही उस नमक को हमने उसमें धीरे धीरे पानी डाल के डिसॉल्व किया। कब तक? टिल जब टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हैज बिकम 100 ml। So this is how you do mass by volume percentage of this case. अब डिस्कस करते हैं हमारा तीसरा और आखिरी केस, दैट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहाँ पर आएगा, पहले तो वही सोच लेते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी कि हमारा सोल्यूट और सोल्यूशन सब कुछ ही लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि ये हमारे वो सोल्यूशन है जिनमें सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड स्टेट में है। सो ये कौन सा टाइप ऑफ सोल्यूशन है? दिस इज अ लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। ऊपर वाले में हमारा क्या था? वहां पे था हमारा सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। अब लिक्विड इन लिक्विड यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का अब अगर हम देखते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 20% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, यानी कि अल्कोहल जो है हमारे पास वो नीट तो नहीं है, उसके अंदर मिलावट हो रखी है। किसके साथ मिलावट हो रखी है? दैट हैज बीन एडेड विद वाटर। अब कितना वाटर कितना अल्कोहल वो देखते हैं। हमने यहाँ पर कहा 20% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि 20 ml या ग्राम? ml, क्योंकि हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो 20 ml ऑफ अल्कोहल हमारा कितने सॉल्यूशन में है? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो टोटल सॉल्यूशन हमारा कितना हो गया? 100 ml, जिसके अंदर हमने मिलाया 20 ml अल्कोहल। तो वाटर कितना हो गया? वाटर हो गया यहाँ पे हमारा 100 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 80 ml। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय 20% solution of volume by volume alcohol in water. So these are the basic formula. Here you can see volume of solute upon volume of solution in ml. अगेन यहाँ पे अगर आप इसको फॉर्मूले को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, दैट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि इन दोनों चीजों को मिला के तो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल न्यूमेरिकल फॉर्म में कि ये किस तरह से आते हैं, उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बहुत सिंपल सा, पहले समझते हैं कि क्या है। A solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage. यानी कि इन्होंने स्पेसिफिकली गिवन कर रखा है हमें कि हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है। अब भाई यहाँ पे हम की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। हमें क्या पता है भाई, हमारे पास 320 ग्राम ऑफ वाटर है और उसके अंदर हमारे पास 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर ये इतना प्रेजेंट है, यानी कि हमें हमारे पास हमारे
को हमें ये भी पता है कि हमारा सॉल्वेंट कितना है और हमें ये भी पता है कि हमारा सोल्यूट कितना है, हमें दोनों चीजें पता है। लेकिन अगर मास बाय मास का फॉर्मूला याद है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी मास ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं है, बट मुझे ये तो पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन किन दो चीजों को मिला के बना है, सोल्यूट और solvent. So I can simply add up these two things. That means solute था मेरे पास 40 grams and solvent I have 320 grams. I can simply add them to get 360 grams, and now all you need to do is just substitute in the formula and you will get the answer as this. Now this means that 11.1 percentage is mass by mass percentage of this solution. अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल थोड़ा अलग, यहाँ पर देखते हैं क्या करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड द मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम्स ऑफ 25% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अरे यहाँ पे तो परसेंटेज पहले ही आ गया, दैट मीन्स हमें उल्टा जाना है। यहाँ पे हमें परसेंटेज गिवन है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है, हमें देखना है कि हमें कितना सोल्यूट कितना सॉल्वेंट लेना है वो सोल्यूशन बनाने के लिए। पर माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन इट इज गिवन? इज इट मास बाय मास, इज इट मास बाय वॉल्यूम, और इज इट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में अगर ये तीनों में से कोई भी गिवन नहीं है, it automatically means that it is mass by mass. तो अब हमें ये पता लग गया है कि यहाँ पर हमारे पास 25% मास बाय मास सॉल्यूशन है ऑफ ग्लूकोज। तो पहले क्या करो, स्टेप नंबर 1, यू राइट द फॉर्मूला। You write the formula simply, you just state it up, mass of solute upon mass of solution into 100. अब इसको कर दो equate, और in other words step 2, you simply add on the values. हमें परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है तो आप यहाँ पे परसेंटेज लिख दो। Now here you will write just 25. आप इसे अपॉन में 100 यहाँ नहीं लिखोगे क्योंकि आप ऑलरेडी 100 यहाँ लिख चुके हो, ठीक है? तो you will not write it here again 100, you will just write 25. नेक्स्ट थिंग देखते हैं क्या हमें पता है, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यानी कि जिस चीज को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूट कौन है यहाँ पे, ग्लूकोज। क्या हमें पता है यहाँ पे कि ग्लूकोज कितना है? नहीं, वो तो हमें ढूंढना है, सो वी डू नॉट नो दिस। मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन मुझे ये पता है कि मास ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट का सम होता है। तो क्या मुझे ये पता है, यहाँ पर हमें गिवन है कि हमें जो हमारा टोटल ये सॉल्यूशन है वो 250 ग्राम का है, तो ये तो हमें एग्जैक्ट गिवन है, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली 250 ग्राम ओवर हियर, एंड इसे सॉल्व करके हमारे पास मास ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा 62.5 ग्राम। अब आपको सिंपल चीज पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो सम है दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमें पता था 250 ग्राम है, सोल्यूट हमने निकाल लिया। नाउ यू कैन सिंपली फाइंड आउट द solvent, that is mass of water, by subtracting, and hence you find it as 187.5 grams. So this is just the opposite way. यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, यू सिंपली राइट डाउन द फॉर्मूला। जो भी सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, जितनी भी चीज आपको गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करोगे, जो चीज बच रही है उसे ढूंढ लोगे। So this was about concentration, and the next mathematical concept that is involved with this solution is solubility. Now this is a very small concept. Now solubility, as you can understand from the name itself, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज कितनी soluble है किसी दूसरी चीज में। अब उसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट भाई एक प्रेजेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर इन अ सैचुरेटेड कंडीशन। तीन कंडीशन है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना
प्रेजेंट है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ये बात तो समझ में आ रही है, चलो ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें वो और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकता सॉल्यूट। ये हमारे पास वाटर है, इसके अंदर हम सॉल्ट डाले जाएं, क्या होगा, एक टाइम आएगा ये सॉल्ट जो है वो लेना बंद कर देगा। सो दैट पॉइंट इज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पर ये हमने एट अ गिवन टेम्परेचर क्यों लिखा है यहाँ पे, ये हमने इसलिए लिखा है बिकॉज अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैं हीट करना शुरू करूँ तो क्या वो और सॉल्ट जो मैं ऐड करूँ क्या वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा? यस, इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग। दैट मीन्स जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपकी solubility will also be affected. So please know that as the temperature will increase, the solubility will also increase. Temperature and solubility are directly proportional. Directly proportional means एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम क्लोराइड दैट मीन सॉल्ट की बात करें 20 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर से भी थोड़ा कम, 100 ग्राम ऑफ वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी होती है 36 ग्राम। दैट मीन्स एट 20 डिग्रीज 100 ग्राम पानी में हम मैक्सिमम 36 ग्राम नमक ही मिला सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नॉट मोर देन दैट। अब इसकी एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। ऑल्टरनेट डेफिनेशन में क्या आएगा, ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि और तो उसमें डिसॉल्व हो नहीं सकता। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हम 100 ग्राम के बारे में बात करते हैं, सो दैट इट कैन बी converted into percentage at a given temperature. We saw the importance of this phrase. This phrase is very important. नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, because as I just told you, solubility and temperature, they do have a very important role to play with. So it is the maximum amount of solute in grams which can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature to form, क्या फॉर्म करना है उसे, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करना है। तो इसको एक मैं न्यूमेरिकल से समझाती हूँ, उसी में आपको फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा क्या करना है। ओके, सो द क्वेश्चन सेज एज 2.5 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट are dissolved in 25 ग्राम ऑफ वाटर। अब सोल्यूट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। अब 298 केल्विन पे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, और हमें निकालनी भी सॉल्युबिलिटी ही है। और हमने अभी क्या देखा था सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन में, कि एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर वो हम 100 ग्राम में कितना कर सकते हैं, यानी कि हम परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट की। यहाँ पर ध्यान रखना, हमने सॉल्यूशन को नहीं लिया है, हमने सॉल्वेंट को लिया है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं उस सॉल्वेंट में कितना हमारा सोल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है। सो यू सिंपली सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू कि मास ऑफ सोल्यूट हमारा कितना था 2.5 अपॉन 25 ग्राम ऑफ वाटर इनटू 100, तो दैट मीन्स इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स हमारी इसकी सॉल्युबिलिटी है, मतलब एट 298 केल्विन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट जो उन्होंने यहाँ पे लिया है, वो लेके मुझे डिसॉल्व करना है 100 ग्राम में, और आप इससे भी कर सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी एंड द फॉर्मूला गोज एज दिस वन। आप देखेंगे ये फॉर्मूला कुछ कुछ मास बाय मास वाले फॉर्मूला की तरह सेम है, बस नीचे आपको ध्यान रखना है कि आपको मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं लेना। So these two are the main mathematical concepts that are related with this chapter. So I have made a separate video just for the numericals.
and for the mathematical portion, that is concentration and the solubility. So I hope all the concepts are clear to you. If the concepts are clear and you like the video, so please do click the like button, and if you're new to the channel, do subscribe it and share it with your friends. Thank you.